Hari Om friends, let us have experience sharing by our new members. Yes, madam, you can repeat your question, please. Namaskar, sir. I just started a week and a half ago, and I try to follow you. I am, but I still have a lot of thoughts in my head, and these thoughts sometimes won't let me sleep at night. I follow what you told me. Yes, I get your question. In fact, overthinking or too much thinking is a biggest disease in the modern times. People are saying it is a kind of addiction which is much more serious than even the drug addiction. People have become used to thinking without any reason. They are keep on thinking. Ravan Maharshi and Nisargadatta Maharaj say, if you are too much into thinking, then you are in the slavery of mind. And if you are in the thick mind state, then you cannot see your true nature, which is consciousness or Atma. So you have started this practices only a week or 2 weeks before. So it is going to take some time. What I can suggest apart from these practices, you just be alert or be aware for 1 or 2 seconds. If you be aware means just ask yourself, am I aware? Put this question to you. Immediately your thought will stop. Put this question to you just to check whether you are in a thinking zone, immediately your thought will stop. So this Okay. will also help you. Am I aware? जैसे मैं सो रहा हूं, मैं पूछूं अपने से क्या मैं जाग रहा हूं, तो मैं जागृति में आता हूं. ऐसे पुट दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. एम आई अवेयर? Then you will come out of the grip of thought. Or you take a pause. Be alert, just take a pause and be still and see within. So these tricks are having good impact on some of our members. But you have to continue with that at least for a month or so. Then only you will start having some peace or silence within. Okay. And I get so discouraged. Initially, it will happen. And then Okay. for the initial people, you can also observe your breath in the beginning. Okay. Observing your breath will also bring you to the present moment. That is the Anapanasati meditation. That is just calm down, close your eyes, and try to see your breath entering into the nostrils and coming out of it. That will also, Okay. that Okay. also you do. Thank you. Okay. Yes, any other friend, please? नमस्कार सर। I just Namaskar. listen their experience. तो तो सर डिफरेंस ये तो सुनते समझ में सुनते आने लगा मतलब है बार बार कि सुनते सुनते कॉन्शियसनेस और वो जो आप कहते हैं कि 1 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए मौन हो जाइए बीच बीच और बॉडी और मन Yes. मन यानी जहाँ थॉट होते हैं जी. तो लेकिन ये क्या होता है कि बार बार ये एकदम मर्ज हो जाता है। मतलब वो बना नहीं रह पाता। वो जो एक फर्क दिखाई देता है वो थोड़ी जल्दी ही मतलब वो बहुत जल्दी थॉट्स में फिर आप चले जाते हो और जी. जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि दिन भर वो बना रहे लेकिन वो नहीं बना रहता है। मैडम आप इतनी जल्दी चाहते हैं उसको, यदि आप ये महसूस हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है. ये अच्छा, जो थैंक यू चीज सर। आप कह रहे हैं, हाँ हाँ यदि हाँ। आपको ये महसूस हो रहा है 1 2 सेकंड का कि हम्म आप हम्म जान रहे हैं कि कब ये प्योर अवेयरनेस है, तो हम्म। इसी को जानने में 6 महीने लगते हैं. ओह ओके ओके। और आप सोच रहे हैं कि सारे का सारा एकदम आ हाँ जाए. हाँ हाँ कहते हाँ यही है कि इसी क्षण, क्योंकि आप हाँ। बात जान ली, द मोमेंट यू हैव अंडरस्टूड, हाँ यू आर फ्री. फ्री का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज नो थॉट, यू आर ए प्लेन अवेयरनेस. अगर आप थॉट में आ गए तो आपका माइंड एक्टिव हो गया. माइंड एक्टिव हो गया तो आप देह भाव में भी आ गए. तो ये ऑफ एंड ऑन चलता रहेगा.
बट अच्छा। यदि आपको ये अवेयरनेस आ गई है तो हम्म। धीमे धीमे उस अवेयरनेस के साथ वो आपका टाइम हम्म। बढ़ता रहेगा। बस अच्छा। उसको करते रहना है। तो तो ये बात समझना ही सब में इम्पोर्टेंट, हम्म। 90 points out of 100 यही है कि यू हम्म। aware of this distinction हम्म। when you are into soul हम्म। consciousness or in being, and when you are in the हम्म। body or mind consciousness। तो वो आपको ओके। समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया। बस इसको करते। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू से। हाँ जी सर, जैसे काफी एक्सपीरियंसेस मेरा 1 मंथ कंप्लीट होने के दौरान ही मैंने शेयर भी की। और मैं आज, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं, तो जस्ट यही बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज जो है वो, हम जैसे एक अज्ञान के अंधेरे में हैं जहाँ पे डूअरशिप डिसॉल्व नहीं होती थी, वो मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि अब वो अज्ञान की जो लेयर है वो थोड़ी सी पियर्स हो रही है। 2 दिन पहले आपने जब टीचिंग ली, जहाँ पे आपने बताया कि सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो रहा है और होने के बाद हम एक डूअरशिप की क्लेम करते हैं, ये इसका साइंटिफिक आधार पता होते हुए भी कभी हम शायद इसको प्रैक्टिकल में या अपने सत्य में कभी प्रकट नहीं कर पाते। बट ये मेरे लिए बहुत माइलस्टोन मोमेंट था, क्योंकि अब वो जो एक मन कहता है कि मैंने किया है, या मन सोचता है कि मेरे करने से हुआ है, वो चांद निकल गई है। तो अब ये भी नहीं कह सकती पूरी निकली, बट एटलीस्ट वो एक रोशनी दिखी जहाँ पे पता चल रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हो रहा है, और अज्ञानतावश हम कहते हैं कि हमने ये कर दिया। तो वो सर, वो चीज बहुत मेरे लिए भी बहुत वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। दी अदर थिंग जो, क्योंकि हम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, और चीजें अब सामने सामने क्लियर हो रही है कि अब कोई मोमेंट है ही नहीं हियर एंड नाउ के अलावा, और उसी मोमेंट में ही सब कुछ है। और जो खुद का स्वरूप है, हम उसी में जब अस्तित्व में ही हम स्थापित है नहीं, बट अदरवाइज तो हम अस्तित्व ही हैं। सिर्फ ये माया रूपी जो एक पर्दा है वो हमारे ऊपर पड़ गया है, अदरवाइज तो हम हैं अस्तित्व ही, सिर्फ एक पर्दा है, वो हटेगा तो हम उसी तत्व में से जहाँ प्रकट हुए और जाना भी वही है। बस उसका एक एसेंस का जो भाव है, और जैसे आप बोलते हो बोध है, वो हो जाएगा। और वो होने की भी अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ, हियर एंड नाउ में सब कुछ है। मतलब इतना सेटिस्फाइंग मोमेंट है ये कि अब किसी चीज की ये नहीं है कि दैट वी हैव टू वेट फॉर समथिंग, बिकॉज ये सेटिस्फेक्शन भी बहुत अपने आप में एक कंप्लीटनेस का अ, मुझे लगता है कि आधार है। सो थैंक यू सर। थैंक यू। अभी मैडम मुस्कान जी ने 2-3 बड़े अच्छे सूत्र बताए और गहरे सूत्र। एक दिन हमने कहा था कि एवरीथिंग इज ए हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं मैं कर रहा हूं। तो क्या होता है, कोई चीज होती है, जैसे सत्संग हो रहा है, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, आपके साथ सुना जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर उसके बाद कर्ता भाव आ जाता है, मैं इसको बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। तो ये मास्टर्स कहते हैं दिस इज इल्यूजन, कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। ये भी एक घटना मात्र है, इट इज जस्ट हैपनिंग। लेकिन स्पॉन्टेनियसली इतनी जल्दी वो होता है, और उसके साथ साथ ही एकदम कर्ता भाव आ जाता है, क्योंकि हम सब अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं। धीमे धीमे जब हमारे अंदर ये क्लैरिटी आती है, तो हमको समझ में आता है कि सारे का सारा एग्जिस्टेंस में एक ये होनापन मात्र है, इट इज ओनली ए हैपनिंग। और इससे बड़ी शांति और बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जब तक आप अपने को कर्ता भाव में रखते हैं, तो आपको लाभ हानि
दुख सुख, यश अपयश, इस सब से आपका संबंध रहता है। और जब कुछ भी हो रहा है और आप उसके करता नहीं, तो आपको उस होने के परिणाम से भी कोई चिंता नहीं रहती। तो ये एक बहुत बड़ा रेविलेशन है ज्ञान मार्ग में। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ओनली रियलिटी इज हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ इज द एटर्निटी, दैट इज द ओनली ट्रूथ। बाकी पास्ट भी ट्रूथ नहीं है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। जब भी कुछ भी होता है वो इसी मोमेंट में होता है। तो इस मोमेंट में पूरा का पूरा 100% इस मोमेंट के साथ आप एकाकार हो जाएं, यही स्वरूप का बोध है। तो ये बात समझ में आ रही है। उस बात को जीवन में उतारेंगे भी, पहले हमें उसको समझ में आना चाहिए, फिर हमारी वो समझ गहराएगी। तो फिर हमको पूरी तरीके का जो शांति होती है, अनवरत शांति, अनवरत आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि माइंड जो है, माइंड की गिरफ्त से हम पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। फ्रीडम का मतलब ही है फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स, फ्रीडम फ्रॉम माइंड। देन यू आर इन योर ओन एसेंशियल और ट्रू नेचर इन दिस मोमेंट। उसी की हम प्रैक्टिस कराते हैं। नमस्ते सर जी, नमस्ते। सर वो मेडिटेशन तो इट इज गोइंग ऑन वेरी गुड सर. As you said, the last was the freedom of all the thoughts. I have broken all the walls of my illusions and thoughts that has touched my core, sir. I twicely. There is a very bliss state is there, sir, that I have experienced. There is a very much freedom is there, sir, that I have experienced, sir. Very good. Thank you very much, sir. You are on a very right track and your state is quite good. You are already having the moments of free moments, total free from thoughts. That is the state of awareness, pure True, sir. awareness. So that can True, continue sir. and that can be expanded further. Good. I am very glad. Thank you. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. यस सर. सर मुझे दो थॉट्स के बीच में बहुत लंबा अभी गैप्स आ रहे हैं. पहले बहुत कम कम होता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो गैप्स बहुत लंबे लंबे होते जा रहे हैं. और एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस मुझसे अभी सहज हो रहा है. Very, एफर्ट्स टू बी एफर्टलेस वो अभी आ रहे हैं. पहले very, एफर्ट्स डालने पड़ते थे, very good. अभी सहज है. तो ये जो दो थॉट की बात है, ये भी इल्यूजन है। जब आप एक थॉट को छोड़ देंगे तो दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। इफ यू आर वाचफुल, दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। दूसरा थॉट आप उसकी इंतजार करते रहेंगे। दो थॉट के बीच में तो तब आएगा गैप जबकि आपको दूसरा थॉट दिखाई दे। इफ यू आर विजिलेंट, द मोमेंट ए थॉट गोज एंड इफ यू आर अटेंटिव, द थॉट विल नॉट कम, द नेक्स्ट थॉट विल नॉट कम. इट विल बी अनएंडिंग प्रोसेस. Only when your awareness dissipates, when your awareness goes down, then only thought can emerge. तो अपना माइंड को अटेंड करें, देखें थॉट, कोई भी थॉट आया बस वहां पे ठहर जाएं, देखें लेट मी वेट व्हेन द नेक्स्ट थॉट कम्स, जस्ट बी ऑब्जर्वर. यू विल फाइंड लॉन्ग टाइम नो थॉट विल कम. हाँ सर. और ये जो सेंटेंस आपने जो बोलते हैं ना, एम आई अवेयर ऑफ दिस थॉट और एम आई अवेयर ऑफ ऑफ द प्योर अवेयरनेस हु हाँ, इज अवेयर ऑफ दिस थॉट, एम आई ये दैट काफी विच काम इज कर रहा है. अवेयर. ये बिल्कुल हाँ. क्लिक करेगा इसको जो लोग भी समझे हैं. Am I this thought or am I that which is aware? Which is aware means which is aware of awareness of this thought. So then this content will go and you will dip into that awareness automatically. Good, Yes. very good. नमस्कार सर. Can- इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अभी जी, थोड़े दिन का वही प्रैक्टिस चल रहा है और जो भी अच्छा एकदम अच्छा परिस्थिति आता है, क्यों घटना आती है, तो भी मैं बैलेंस में रहती हूँ और कुछ होता है ऐसा वैसा तो भी मैं अवेयर में रहती हूँ. मतलब एकदम खुशी का बात है तो पहले कैसे बहुत खुशी से एकदम ये हो जाते थे,
और कुछ थोड़ा मन को दुख होता है तो एकदम ये हो जाते थे। वैसा अभी नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ये सब नाटक जैसा चल रहा है, ऐसा देख रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। और मैं हूँ ये चालू रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये धन्यवाद भी सर। अच्छा प्रैक्टिस है जो मैडम ने कहा कि थोड़ा सा हम विटनेस भाव में आ जाते हैं, साक्षी भाव में। तो हमको देखते हैं ये मूवी की तरह हो रहा है, कुछ अच्छा भी आया कुछ बुरा भी आया, तो उसका हम पे असर कम होता है। और आईएम की प्रैक्टिस, तो और इसको सर मैं माहौल में भी थी ना, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि एक बड़ा मतलब मॉल में हम गए थे बच्चों के साथ, और हाँ चांद का सिंगिंग का एक प्रोग्राम था। तो वो हाँ गाना गा रहे तो भी मेरे को आनंद ही आ रहा था, वो एक अलग, मैं इसमें ही थी। और अचानक बारिश आए तो बारिश का भी मजा ले रही हूँ, गाना भी सुन रही हूँ, और हाँ सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ मतलब ऐसा मैं अंदर से अलग महसूस कर रही थी अपने आप को। हाँ, मतलब अभी आपको एक्सप्लोर करना है। जो अभी आपका थोड़ा सा इसमें इक्वेनिमिटी आ रही, नहीं कह सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं अभी मन के राज्य की बात। हाँ मन थोड़ा शांत हो रहा है आपका इससे। अवेयरनेस और थोड़ा गहरा जाएंगे तो और अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस में फिर ये एक्सपीरियंस हट जाते हैं। अभी ये हाफ वे है आपका, और इसको गहरा करेंगे तो फिर होएगा। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं एक थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ा सा संशय था, डाउट था इस चीज के बारे में। सर अगर हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो एक साइलेंस है, तो जो हम अनहद नाद की बात करते हैं, दैट इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, वो कैसे मतलब साउंड हो सकता है? क्योंकि यूनिवर्स इज ऑल्सो मतलब अ पार्ट ऑफ द साइलेंस ना, तो उसका साउंड भी तो साइलेंट ही होएगा। अनहद नाद है बिकॉज देयर आर मेनी थियरीज। वन थियरी सेज इट इज ए बिग बैंग थियरीज की शुरू में नाद शुरू हुई और नाद से एग्जिस्टेंस हुआ। तो सर्टेन क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड। इट इज कॉल्ड साउंड ऑफ साइलेंस। दैट इज वाई इवन दिस साउंड इज कनेक्टेड टू साइलेंस। तो सर्टेन थिंग्स वी डू नॉट गो, बिकॉज बुद्धि से हमारी समझ में भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ये उसी ब्रह्म तत्व की नाद है, क्योंकि देयर इज ए वाइब्रेशन विच इज नीडेड फॉर क्रिएशन। लाइक दिस आंसर इज गिवन दैट देयर सम वाइब्रेशन इज नीडेड फॉर क्रिएशन, एंड ये सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि का जो मैनिफेस्टेशन होता है ब्रह्म तत्व से, वो उसमें नाद का एक विशेष योग होता है, ऐसा बोला जाता है। Your questions are so fundamental and good questions, but they all are coming from the intellect only. जी Certain सर। questions को जानने का जरूरत नहीं है, only try to touch the silence within. Then your within the silence जब वो हो जाएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को जानने का जरूरत ही नहीं रहेगा। जी सर, क्योंकि सर मुझे तो कभी अनहद नाद सुनाई नहीं देता, मेरे को कोई तो ये नहीं देता तो साइलेंस। बहुत अच्छा है। नहीं देता तो कोई जरूरत नहीं है उसको सुने। पहले भी हमने कहा कुछ को सुनाई देगा कुछ को नहीं सुनाई देगा। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, किसी को होंगे किसी को नहीं होंगे। एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। हो जी गया तो सर। भी अच्छा, नहीं भी हो गया तो भी अच्छा। सर वी हम लोग एक्सपीरियंस के भी तो विटनेस ही है ना, वी आर सीइंग द हाँ, एक्सपीरियंस। यस यस। तो इसलिए एक्सपीरियंस को तो हमें लीव अवे करना है। ओके सर। एक्सपीरियंस इज ऑफ नो वैल्यू, ओनली द सेंस ऑफ अवेयरनेस विच एक्सपीरियंसेस, दैट इज द की। यस। Every experience is happening in this awareness, the जी pure सर। awareness. जी तो सर। दैट प्योर अवेयरनेस का फीलिंग हमेशा आपको रहता है। लेकिन चूंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है, तो आपका ध्यान उस एक्सपीरियंस पे चला जाता है। जैसे अभी भी यू आर अवेयर, आई एम ऑल्सो अवेयर, बट our focus, our attention is on these words which are being spoken or which are being listened. But basic substratum is that awareness only. So that is why we are directing this practice. Am I these words or am I that which is aware? So you will come back to the awareness. That is the substratum. जी
जिन लोगों को भी, जो लोग भी जब ये सुनते हैं, यदि उनका माइंड विश्लेषण करेगा तो जो गूढ़ बातें बताई जा रही हैं सत्संग में वो स्किप हो जाती हैं। बहुत बार इन बातों को लगातार रिपीट हम कर रहे हैं, तभी भी समटाइम्स द क्वेश्चंस विल कम, तो लगेगा दिस एंटायर दिस सब्सटेंस विच वी आर बीइंग टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, वो कहीं भी टच नहीं हुआ, ऐसा होता है। मेरे को थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में एक्सप्लेन कर दो। इज अवेयरनेस इज द माइंडफुलनेस और It व्हाट? is it is higher than the mindfulness also. Mindfulness means when you are aware of something, you be there. That is ओके, mindfulness. या, Like if you are listening now, so you must listen to only. Your mind should not be thinking something else. You just be 100% on these words. This is the mindfulness. And awareness, pure awareness is where even these words are not there. It is totally silence. In between, if you are alert and there is no object in that awareness, that is the pure awareness. Now, these words are there in this awareness. You are aware of these words now. So, you can be mindful. You can listen mindfully. If you are not having other thoughts than these words, then it is a ओके, mindfulness. ओके, When you are just, there is no words also, there is no listening, just you are sitting silently and you are, दैट्स अवेयरनेस। that's awareness, ओके, proper awareness, free from thought, free from anything, just being. थैंक यू, आज पता लग गया है। Yes, yes, thank you. Good. सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जब हम बोलते हैं कि जो एवर फ्रेश है, जो कॉन्शियसनेस, जो मतलब बेसिक हमारा नेचर है या एंटिटी है, और वो एवर ब्लिसफुल है, तो जब हम इसी जैसे मोमेंट में ही रहते हैं तो वो ब्लिसफुलनेस हमको फील होगा क्या आगे जाके? अभी तो नहीं होता। हाँ, अभी नहीं, अभी भी होता है, वो इतना छोटा होता है। हम्म। आपको जब आप थॉट के जोन में हैं, जब आप विचार हम्म। में हैं, तो हम्म। कोई भी विचार होगा उसमें आप स्ट्रेस में होंगे, हम्म। आप एंजाइटी में होंगे। हम्म। विचार क्या है? विचार में या तो आप पास्ट में जाएंगे या हम्म। फ्यूचर में जाएंगे, तो हम्म। उससे आपको टेंशन होगा। और हम्म। जब आप अवेयरनेस में होंगे, देयर इज नो थॉट। हम्म। अवेयरनेस अखंड है। अवेयरनेस इंडिविजुअल होती है। जो भी इंडिविजुअल होता है हम्म। उसमें आनंद ही होता है, वो ब्लिसफुलनेस ही होती है, शांति होती है। शांति हम्म। और आनंद में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। हम्म। प्लेजर नहीं है ये, प्लेजर में एक्साइटमेंट होता है। ये शांत भाव जो है, इसमें आनंद होता है, इसका नाम है आनंद। और वो है सेंसुअल प्लेजर, जिसको आप कंफ्यूज कर रही हैं इससे। तो बहुत एक्साइटमेंट होता है यहाँ पे जब आप पूरी शांति में रहते हैं। जैसे आप सुबह को सो के उठते हैं, कभी आप सोच, सुबह को सो के उठते हैं तो कितना आपको आनंद होता है। वो आनंद कोई एक्साइटमेंट नहीं है, प्लेजर नहीं है, वो एक बिल्कुल शांति और अंदर से बहुत ही तृप्ति का भाव। तो ऐसा ही ये जो अवेयरनेस के मोमेंट होते हैं, इसमें चूंकि आप थॉट्स में नहीं हैं, तो आप पूरे पीस में चले जाते हैं एंड यू हैव दैट फीलिंग। वो धीमे धीमे आपको अभी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका वो समय बहुत छोटा है, 2 सेकंड 4 सेकंड का। When it spends, it extends for 1 or 2 minutes, then you will realize it is a complete peace, silence and bliss. नमस्ते सर। हाँ, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ, इनफैक्ट बोलना नहीं चाहती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे सोचती थी कि मुक्ति क्या है। तो अभी मेरे को ऐसे कुछ ऐसे फीलिंग ऐसे आती है कि मुक्ति वो चीज है, लाइक जब मुक्ति एग्जैक्टली व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम योर माइंड। अगर आपको माइंड से, उसके थॉट से, उसके वाइब्रेशन से, या उसके जो माइंड जो भी गेम्स खेलता है या जो भी वो लगा रहता है,
उससे अगर आप फ्री हो जाते हो तो फिर समझ लेना है कि इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, सो वहां तक तो ठीक है, उसके आगे जो जाना है हमको, probably that could be God realization या whatever other thing। बट अभी मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मतलब मैं जान रही हूँ, आई नो आई एम। तो वो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम वो जान रही हूँ, जहां मुझे दिमाग का कोई काम नहीं करना है, मैं बैठी हूँ या जो भी हूँ, खड़ी हूँ, लेकिन मैं साइलेंस हूँ, मुझे मतलब कोई थॉट्स कुछ सता नहीं रहे हैं, ना तो मुझे वो बहुत खुशी दे रहे हैं, ना कोई गम दे रहे हैं, मतलब थॉट्स ही नहीं है बेसिकली। वो वक्त में मुझे लगता है कि आई एम फ्री। एक्चुअली मुझे कैसे मैं बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए मैं Sometimes, आपको बता ही sometimes नहीं। it happens. Sometimes it happens, but you are on the right point. फ्रीडम मीन्स, मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब है फ्रीडम। और फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम माइंड, फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स। सो जब आपके थॉट कम हो जाते हैं, आप प्योर अवेयरनेस में रहते हैं, तो दैट इज ए स्टेट ऑफ फ्रीडम और स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और यू से आई नो आई एम, इसी को कहते हैं आई एम गॉड। गॉडहुड और डिविनिटी मीन्स when you are free from thought, because mind is divided and you are undivided, awareness is undivided। उसके बाद एक एब्सोल्यूट स्थिति होती है जिसका आपको भान भी नहीं रहता, दैट इज बियॉन्ड दैट, दैट इज निर्गुण ब्रह्म। ये मैनिफेस्टेड ब्रह्मन की स्थिति है जब आप कहते हैं आई नो आई एम, एंड दैट इज द अल्टीमेट, विच मीन्स अप टू दैट ओनली ये संभव हो सकता है कि आप उसको इस स्थिति तक चले जाएं, मैं जान रही हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, अस्तित्व का बोध वो आपको हो रहा है। और वो किसी को भी हो सकता है और तत्क्षण हो सकता है, वो आपको हो रहा है। उसका फिर टाइम बढ़ जाएगा, किसी को वो हाँ, 2 सेकंड के लिए हो रहा है, किसी को 2 मिनट के लिए हो रहा है, किसी को घंटों के लिए हो रहा है। एक बार उसका टच आपको आ गया तो फिर उसको बढ़ाने में उतनी देर नहीं लगेगी, थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा, ऐसा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे काफी जॉयफुल लगता है एंटायर डे विदाउट एनी रीजन, टाइम का भी नहीं पता लगता है। तो ये आई एम मेडिटेशन वर्क तो बहुत अच्छा करता है, फ्री करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मुझे एक थोड़ा बुक्स का एडिक्शन बोल लीजिए है। तो ये सब पढ़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा रहती है, और जितना मेरा फ्री टाइम होता है मैं बुक्स रीड करती हूँ इसी के बारे में। तो आई नो कि दिस इज ऑल्सो अ गेम ऑफ माइंड, गेम माइंड का ही गेम है। तो उससे कैसे फ्री हुआ जाए कि जब मैं खाली हूं तो मैं बुक्स की तरफ ना देखूं, मतलब जब मुझे रियलिटी पता लग गई है तब भी मैं बुक्स की तरफ जा रही हूँ, वही चीज बार बार पढ़ रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ। इसको हम कैसे, इससे कैसे फ्री हो सकते हैं? If you are reading the books related to I am, then it is okay. It will deepen your understanding. लेकिन यदि आपका बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर बहुत स्प्रेड आउट है तो इट विल डिस्टर्ब यू। और यदि आप आईएमनेस में, तो आईएमनेस से रिलेटेड यदि निसर्गदत्त महाराज की कोई भी बुक पढ़ती हैं तो दैट इज गुड, क्योंकि निसर्गदत्त महाराज का ही सब में ज़्यादा कंपाइलेशन है जो हमारे पास है, मतलब आज के दिन में जो आईएमएस पे जितना ज़्यादा उन्होंने लिखा है। और मे बी देयर आर सम मॉडर्न मास्टर्स ऑल्सो दे आर टॉकिंग, बट ट्राई टू कन्फाइन योर फोकस ओनली ऑन दी दिस लिटरेचर। यदि आप इधर उधर का पढ़ेंगे तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो रही है, विच इज गोइंग डीपली वर्टिकली, इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्टली, क्योंकि टू सेजेस और टू मास्टर्स आर सेइंग टू डिफरेंट थिंग्स, एंड देन द माइंड एंड इंटेलेक्ट विल अगेन कम ओवर, ऐसा। ओ- ओके सर। और सर अगर कोई बुक पढ़नी हो तो कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे यदि आपको पढ़नी तो निसर्गदत्त महाराज की लीजिए, एब्सोल्यूट एंड कॉन्शियसनेस है एक किताब, कॉन्शियसनेस एंड एब्सोल्यूट है। प्रायर टू कॉन्शियसनेस है, आई एम दैट है। निसर्गदत्त महाराज के डालेंगे तो 8-7 बुक्स हैं उनकी, उस सब में इसकी मतलब आई एम के ऊपर ही हैं वो सारी किताबें।
उन्होंने जितना अधिक लिखा है, उन्होंने लिखा नहीं है, उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। वो निसर्ग दत्त महाराज का बुक्स पढ़िए, और रमन महर्षि का बहुत किताबें हैं, वो पढ़ सकते हैं। रमन महर्षि का हु एम आई टेक्निक पढ़िए, सेल्फ इंक्वायरी पढ़िए, पॉल ब्रंटन की पढ़िए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया, जिसमें पॉल ब्रंटन सब जगह घूमे, सारे सेजेस से मिले इंडिया में, उसके बाद ही रीच्ड रमन महर्षि एंड व्हाट डिड ही फील। सो दे आर द ओरिजिनल बुक्स दैट यू कैन रीड। ओके, Okay, sir. Thank you. I think this answer I was looking for कि कैसे वो distraction हटाए, तो आप उसको बोल रहे confined narrow करके उसी यस, teaching पे आना। उसी टीचिंग को ठीक, पढ़ेंगे तो दैट टीचिंग विल डीपन। यस, ओके, thank थैंक you, यू। sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक्चुअली आई एम जस्ट अ मदर एंड अ होम मेकर, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, बट अर्लियर आई वाज इन द मॉडलिटीज। तो मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन एक जो फैमिली कॉन्स्टलेशन करके एक मॉडलिटी है, उसमें मैं सिर्फ फैसिलिटेटर को हेल्प करती हूँ, और पूरा टाइम मेरा सेल्फ इंक्वायरी पे ही, माइंडफुलनेस पे ही फोकस होता है। सो इज दिस हेल्पिंग मी और नॉट हेल्पिंग मी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं क्या करूँ दिन भर? लाइक वो एक थॉट आता है, बट आई एम अगेन मैं वो क्वेश्चन पूछती हूँ, ये थॉट किसको आ रहा है? वो हो रहा है प्रैक्टिस, बट मैं करूँ क्या? वो एक आता ही है थॉट कि मैं दिन भर में क्या करूँ। तो इज दिस फैमिली helping the facilitator in this modality? Is it helping me or is it going me? Because I all the I could not get your question. Your question is this thing कि earlier you were too much occupied, now you have left, but still you are having some piece of work. या आई Are एम हैविंग दिस, हाँ मैं एक काम कर रही हूँ, मतलब मैं एक फैसिलिटेटर को हेल्प कर रही हूँ फैमिली कॉन्स्टलेशन में बाय डूइंग चैनलिंग। that is only for a part of the time you are पार्ट attending. ऑफ द टाइम, या पार्ट ऑफ टाइम, So हाँ, लेकिन ये your question is whether this should be continued or this should also be left over. This is your लेफ्ट question. ओवर, हाँ, या I इज इट think you हेल्पिंग should मी? continue. You should continue. In fact, some amount of work हाँ, we should continue. Then only we will be testing our this knowledge. Otherwise, हाँ, we will be totally free from any work. So we cannot test, we cannot examine whether really our knowledge is on in the right direction. Otherwise, you हाँ, may just plunge into lethargy or हम्म, laziness, and then you can think that yes, I am into meditation, I am into the practice. So basic thing is that if you have any task assigned to you, while doing that task your awareness should expand. So you should continue with whatever work you are having. Of course, हाँ, the people who are into spirituality, they should take limited work, but the quality of their work will be superb, much better, and that they will find a lot of joy also doing that work also, because they will be very ओके, mindful of doing that work. ओके। Thank you. क्योंकि ये थॉट आता है कि क्या करे दिन भर, लाइक वो वो So आता ही है, मतलब। you are occupied. Otherwise, you can just do this practice. You can read some literature, the हाँ, 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 master's wisdom relating to that. Like if ओके, we are teaching now Nisargadatta Maharaj, Raman Maharshi, you can have few books and you can read them again and again. That will be kind of swadhyaya. यस, Or you can see some videos which are available. Not only mine, maybe you go Google search and you can see some videos or audios on the Raman Maharshi or Nisargadatta Maharaj. That also you can do. ओके, यस, Another थैंक thing यू। which you can explore is this ki every one of us should dedicate some time for seva. Because if selfless service is done, it also gives boost to our awareness. If you can find something around you, whatever way, serving the animal kingdom, serving the vegetation kingdom, serving the human kingdom, whatever, whoever is in need and you can just use your services, that is also very good. हमारा फोरम था, शिवयोग फोरम, मैं 2008 से जुड़ी हूँ। तो वहाँ से हमको यही सेवा के बारे में बहुत सारा इवेंट्स हमसे करवाते थे हमारे फोरम थ्रू। तो हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं,
उनके लिए हर साल स्कूल चालू होने से पहले बुक्स वगैरह देते हैं, और दिवाली के फेस्टिवल वगैरह आते तो उससे पहले उनको कुछ मिठाई स्वीट के और कुछ भी ऐसे क्रैकर्स है वो सब जिनको उनको नहीं मिलता है, वहाँ जाके हम लोग वो सर्विस सेवा निस्वार्थ सेवा करते हैं। ग्रुप हमारा ग्रुप है, तो हम उनसे अभी गणेशपुरी में नित्यानंद बाबा जी है, वहाँ हम जाते हैं। वहाँ के आजू बाजू में बहुत सारे गरीब स्कूल है, उनको ग्रांट नहीं मिलती है, तो ऐसे ही बच्चे को बहुत सारा नीड होता है। तो इस बार हम लोग स्कूल बैग बना के 500 बच्चों को हमने वो दिया, उसके साथ में सब कुछ छोटा छोटा आइटम सब, और ऐसा हमारा ग्रुप है, तो हम लोग जाके बांट के आए। और वृद्धाश्रम है उधर एक, तो वृद्ध लोगों के लिए रजाई कपड़े ऐसे भी लेके गए थे, तो छोटे छोटे बालवाड़ीज है उधर, उनको भी दिए। तो वो वृद्धाश्रम में मेरे को तो बहुत इस बार ऐसा महसूस हुआ, उनको उनका आनंद जो हम मिलता है तभी वो ऐसे, तो ये सारे अनुभव की बात है, तो हम शब्दों से नहीं कह सकते, मगर आनंद मिलता है और सेवा तो होती है अपने से जितना थोड़ा बहुत हम लोग तो जाके करते आप ऑलरेडी किसी संस्था से जुड़े, जो संस्था से जुड़े वो तो ठीक है। राज अरोड़ा जी का ये था कि वो खुद इंडिविजुअली कर रहे हैं मैडम, इसलिए उसमें थोड़ा सा फर्क है। संस्थाएं तो बहुत चल रही हैं, हम लोग भी कई संस्थाओं से जुड़े हैं, वहां तो हैं। वो अच्छा। ग्रुप खुद ही ऑलरेडी काम कर रहा है। हम्म। आप उसके पार्ट हैं, दैट इज वेरी गुड। कभी यस। कभी भी आपको लगे कि किसी जगह पर, इंडिविजुअल भी हम लोग करते हैं। इधर मेरा आमची शाला करके गरीब स्कूल में ही मैं थी, गरीब बच्चों का स्कूल था, वहाँ हाँ मैं जॉब करती थी मॉन्टेसरी में। तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल भी हमारा इधर मतिमंद बच्चे रहते हैं, उनको ऐसा हम जितना हो सके उतना कर लेते अब हैं। अभी आप क्या है कि जब आप इस ग्रुप के पार्ट हैं, यदि कोई इंडिविजुअल आपको कभी करना हो और यदि आपको लगे कि हाँ यहाँ ये जरूरत है, तो हाँ उसको सर। आप हमको बता के ग्रुप पे डाल सकते हैं हाँ इंडिविजुअल। सर। हाँ, मतिमंद बच्चों रहते हैं जो हाँ वैसे है, अनाथ बच्चे हैं, वैसा ठीक है, हम लोग करते हैं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। हाँ यस सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, प्लीज। सर, आज जो अनुभव इन्होंने बताए प्रतिभा जी ने और शिल्पा जी ने, वैसे ही एक्चुअली 24 घंटे हैपनिंग हो जाता है। मैं एक्चुअली अवेयरनेस में रहता हूँ, इतनी ऊर्जा मिलती है सर। वो इतना ये ऊर्जा मैं रहता हूँ नहीं, वो एक्चुअली बीइंग में मैं एक्चुअली चैनलाइज करता हूँ। तो मैंने मैं जिस जगह रहता हूँ सर, वहाँ पे मैंने मेडिटेशन सेंटर ओपन किया सर। तो 18-20 लोग आते हैं हर संडे, 4 to 5:30। दूसरी बात ये है कि 6 दिन का महिलाओं के लिए एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स लिया था, 6 दिन का। तो उनको, वो महिलाओं को बहुत लगा, तो उनको अभी 25 दिन का मैं लेने जा रहा हूँ, ये वर्कशॉप पूरा 25 दिन का, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए और अपने जहाँ भी रहते हैं उनके लिए वो सेवा दे सके। और तीसरी बात है कि लोनावला का मन शक्ति केंद्र है, उनको मैंने बुला के इधर मन शक्ति के बारे में उनका 2 घंटे का लेक्चर रखा। ऐसे अलग अलग जो टॉपिक पे मैं एक्चुअली लोगों का एक ग्रुप बनाया है, उसमें 150 पौने 200 लोग जुड़ गए हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है। फिर भी वो थोड़ा सा, उनको अगर सोशल एक्टिविटी करने के बाद में जब उनके थोड़े से उनके हृदय में थोड़ी सी जगह बन जाए, तो मैं ध्यान के बारे में उनको बता के आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे 100, 150, 200 स्क्वायर फीट की जगह है, छोटी छोटी जगह में लोग रहते हैं, बच्चे नहीं सकते। तो उनके लिए बीएमसी ने एक जगह बनाई है सर, 6 to 8, यानी शाम को 6 से 8 वो बच्चे जो है घर में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए महापालिका ने जगह बनाई है। उसका मैं जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, उनमें मैं एक्चुअली थोड़ा प्रोपोगंडा करके उन तक पहुंच रहा हूँ। और महिलाओं का यहाँ पे योगा सेंटर किया है, सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे। ऐसे ये जो सोशल वर्क है सब चालू है, क्योंकि जो ऊर्जा जो है
वो ऊर्जा हम लोग एक्चुअली कर्ता भाव में नहीं रहते हुए, कर्ता जो है वो कर्ता भाव हमारा टोटली एक्चुअली गिर गया है, टोटली ये हो गया है। जो भी कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है, विश्वात्मक शक्ति जो है हमसे करा कर ले रही है। इसके सर मैं अनुभव एक्चुअली फ्लुएंटली ले रहा हूँ, रोज ले रहा हूँ। वेरी गुड। अभी कल या परसों 2 दिन है ना, जो लाफिंग क्लब चलाते हैं उनको मिलने वाला हूँ, और उनको मिलकर मैं हमारे लाफिंग क्लब शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि लाफिंग ऑल्सो अ बेस्ट मेडिसिन फॉर द लाइफ। ऐसे यस, अलग अलग किस्म के अलग अलग लोगों के लिए ये सब करना चाहता हूँ। और परसों मैंने मेरे डायरी में 50 प्रोग्राम जो है वो सभी उम्र के लोगों के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ऐसे 50 प्रोग्राम मैंने लिख के रखे हैं मेरे डायरी में। और एक एक करके उसको मैं आकार कौन देने वाला हूँ, मैं तो आकार नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ एक्चुअली मेरे से हो रहा है ये। और ये इसकी जो मजा जो है, उसका मजा और उसका आनंद में एक्चुअली अवेयरनेस पे रहते हुए मैं ले रहा हूँ सर। दिस इज माई लाइफ टुडे। वेरी गुड। सुनील जी ने अपना नाम ही एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है। दैट इज वेरी, वो पॉइंटेड उन्होंने बात की है। उस बात का ये है कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इस प्रैक्टिसेस से उनका अवेयरनेस बढ़ा, और यदि अवेयरनेस कंटिन्यूस रहेगा तो अवेयरनेस में एनर्जी का कोई डेप्लीशन नहीं होता, एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन होता है। जितना नींद से एनर्जी आती है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा अवेयरनेस में अवेयरनेस। एनर्जी, क्योंकि थॉट ही जो है एनर्जी को खाता है, और थॉट रहा नहीं। अब वो जब एनर्जी का एक लेवल हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी होती है। उसका खुद ब खुद जो है नेचर जहाँ पे हवा ज़्यादा उसका उपयोग करती है, पानी ज़्यादा वहाँ का उपयोग करती है, पेड़ कहीं से भी पानी खींच लेता है। ऐसी ये अवेयरनेस की एनर्जी इन पे ज़्यादा है, वो खुद ब खुद नेचर उसको एक डायरेक्शन देती है, और उसके माध्यम से वो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बन जाता है सर्विस के लिए। तो ये बात उनके जीवन से जो उन्होंने बताया, खुद ब खुद वो मैनिफेस्ट हो रही है कि उनका एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ है। उनको उस एनर्जी को यूज करने के नए नए भाव उनके अंदर आ रहे हैं, और वो लगातार लबालब तरीके से तमाम कार्यों को करने के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। इसको ऐसे देखना है, उसको ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कर दिया, उसको उसको एक्सप्रेस कैसे होना है वो चीज देखनी है। इन स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू आर फोकस, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी होती है। नहीं तो हम एक चौपाल की तरह बैठ करके बातें करते रहते हैं, नोट दैट। सर जो आपने 4 बातें जो बताई है ना, हाँ। वो एक्चुअली आंख बंद करने के बाद में अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाती है। ना यस। कुछ बोलना, ना कुछ सोचना, ना कुछ चाहना, और ना कुछ करना। ये 4 बातें है ना, ये 4 मुक्ति की तरफ लेके जाने वाली है सर। बस संत बस। ज्ञानेश्वर बोलते हैं ना, 4 मुक्ति के लिए हम लोग इस धरा पर आए हैं। तो ये चार यस। वर्ड्स और 4 स्टेटमेंट है ना, वो इतने दिल के गहराई में अंदर जाके बसे हुए है ना, तो अपने आप आंख बंद करने के बाद में इम्प्लीमेंट हो जाता है सर। करना नहीं चारों पड़ता द्वार, है बीइंग। हाँ सर। चार द्वार आपने बंद कर लिए, ये चारों, करने हाँ का सर। भी, सोचने का भी, समझने का भी, चाहने का भी। तो सारे हाँ सर। द्वार आपके जो हैं जिससे एनर्जी जा रही थी, यस और सर। क्या आप पास्ट फ्यूचर में भाग रहे थे, यस वो सर। सब खत्म होके आप एटर्नल नाव में आ जाते हैं, यस सर। यस। उसमें आ जाते हैं, और वहां थैंक यू, पर थैंक यू, थैंक एनर्जी एनर्जी है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। मिलियन टाइम, बिलियन टाइम, ट्रिलियन टाइम थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यस। सर मुझे इससे क्वेश्चन है, शिखा बोल रही हूँ कि हाँ, जो हमारी ये बात तो ठीक है, जब एनर्जी आ जाती है तो वो खुद डायरेक्शन देती है, लेकिन हमारी लाइफ का पर्पस अवेयरनेस के अलावा भी मतलब कुछ होना ही चाहिए क्या? ऐसा कुछ होता है कि वो पर्पस खुद से आता है नेचर के थ्रू, या नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, बस हमको अवेयरनेस पे ध्यान देना है? ऐसा है कि अवेयरनेस का तो पर्पज ये है कि यू शुड रियलाइज योर ट्रू नेचर, दैट इज बाई नोइंग दिस अवेयरनेस, और बाई स्टेइंग अबाइडिंग इन दिस अवेयरनेस। ये तो आपका सब में बड़ा पर्पज है ही। साथ में चूंकि आपके पास ये शरीर और मन है, तो ये जो स्थूल शरीर है इसको पोषण कहाँ से मिल रहा है? इस फूड बॉडी को 5 तत्वों से मिल रहा है, वो प्रकृति है।
तो जब आप प्रकृति का ले रहे हैं तो प्रकृति को इस शरीर से वापस जाना चाहिए। जिस बॉडी को आप कहाँ से फूड ले रहे हैं? नेचर से, प्रकृति से, 5 तत्वों से, एयर से, वाटर से, फायर से, अर्थ से, मदर अर्थ से। If you are taking, this body is taking sustenance from Mother Earth, it should pay back to Mother Earth. तो उसके लिए सेवा के भाव खुद आएंगे शरीर में, खुद भाव उठेंगे मन में। जब आपका मन प्यूरिफाइड होगा तो आपकी जो इंडिविजुअल कन्फाइंस एंड लिमिटेशंस हैं, दैट यू आर ए सेपरेट सेल्फ, वो गिर जाएंगी। तो देन द ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये ही आपके अंदर ऐसे भाव पैदा करेगी जिससे कि आपको सेवा के कार्यों में आप लग जाएंगे। सेवा का कार्य ये भी है, यदि सत्संग मुझसे करा रही है नेचर, तो ये भी एक सेवा का कार्य है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस ओनली, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डूइंग सम सत्संग। somebody may serve the poor, other people may give education to somebody। वो सबका सब कुछ ना कुछ नेचर कराती रहेगी आपसे, ऐसा। ओके सर, मतलब हमको किसी चीज के लिए नहीं भागना, और नेचर खुद ब खुद लेके आती है आपके डायरेक्शन। अंदर स्फूर्णा उठेगी, भाव उठेंगे। नेचर जो हम सोचते हैं ये भाव, मैं भाव का करता मैं हूं, नहीं, भाव उठते हैं आपके अंदर, स्फूर्णा उसको कहते हैं। आपके अंदर इंट्यूशंस उठेंगी। संत होता है, संत का डूअर से बिल्कुल गिर जाता है। सुबह को उठेगा, उसके अंदर भाव आया, चलो आज नदी के किनारे चलते हैं। वो नदी के किनारे चला गया, वहां पे कुछ जरूरत पड़ी कुछ लोगों को, तो वहां पे उसका उपयोग हो गया। ऐसे ऐसे होता है। मतलब देयर इज नो प्लानिंग इन हिज माइंड, बिकॉज हिज इंडिविजुअल माइंड इज गॉन, सो ही इज कंट्रोल्ड बाय द हायर पावर। ही ऑल्सो मूव्स, ही ऑल्सो टॉक्स, ही गोज। तो उसकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए हायर पावर। थैंक यू सर। सर आप डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। यस। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, हरिओम। नमस्कार। हरिओम। हमारा मतलब हम यही संप्रदाय से है, निसर्ग समाज के। तो जब भी आरती करता हूँ ना, हम लोग का तीन तीन टाइम का भजन रहता है। रात को जब भी आरती करता हूँ ना, तभी हाँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि बॉडी, मतलब बॉडी पे मतलब यही नहीं रहता है, मतलब वो, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है वो भाव कि हाँ। मतलब आरती चल रहा है लेकिन मैं बॉडी से अलग होकर ऐसा ऐसा मतलब हो रहा है, ऐसा मतलब अनुभव आता है। ऐसा है कि निसर्गदत्त महाराज ने दोनों बातें कही। ज्ञान मार्ग से ये आई एम का मेडिटेशन कहा, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया उनसे कहा भजन करो, और दोनों से आप वहीं पे पहुंचेंगे। तो जो बाहर के लोग आए, जो इंग्लिश पढ़े हुए थे, जो दूर दराज से आए, उनको ये सब जो वर्ड वी आर डिस्कसिंग, और जो गांव के देहात के लोग थे जिन्होंने कहा गुरुजी हमारी कुछ समझ में नहीं आता, उनसे कहा भजन करो। भजन भजन में और भी ज्यादा पावर है। तो वो लोग 2 घंटे जब भजन करते हैं तो वो देह भाव से देव भाव में चले जाते हैं। मतलब वो कहते थे कि भजकाला भजा, जो भजक जो भजन करून घेणार आहे त्याला भजा, असं त्यांचं म्हणणं असायचं। म्हणजे जो अंतरी तुमच्या बसलाय त्याचं म्हणजे त्याचं भजन करा असं। तर तो म्हणजे भजन करताना कधी ते फ्रॅक्शन ऑफ कधीतरी सेकंड असं होतं की असं म्हणजे जाणवतं का मी बॉडीपासून वेगळा आहे असं। तो उसका यही है कि अभी आप ये थोड़ा ज्ञान भी सुनेंगे, जो लोग ज्ञान भी सुनते भजन भी करते हैं वो और भी बेटर हो जाएंगे, और अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी भी उनके जो दहीसर में है उनकी समाधि है, वहां भी शाम को आरती होती है, सजने को भजन होते हैं, और 2-3 घंटे तक जो भी भजन में बैठता है उसका बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। राइट। दहीसर में है वो मठ, वेस्ट में है। राइट। और इधर बाणगंगा में भी उनका समाधि है। जी जी। हाँ, हम लोग, मैं बुधवार को भी जाता हूँ मैं समाधि पे। तो मतलब उसमें जाने के बाद इतना अच्छा मतलब फील होता है ना। वो मतलब 1 घंटा शाम को बुधवार बुधवार को रहता है। तो उसमें मतलब आदमी मतलब सब अपना चिंता ही दूर हो, मतलब भूल जाता है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होता है। उन्होंने Thank you. कहा, लोगों ने आके उनसे, बहुत लोगों ने कहा हमारी समझ में ये बातें नहीं आती, ये ज्ञान की बातें हमें समझ में नहीं आती।
तो उन्होंने कहा भजन करो, बस भजन से भी आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। ओके ओके, जो थैंक यू ज्यादा सर। अपने को समझदार समझते हैं, बुद्धि वाले समझते हैं, उनके लिए ये है हाँ हाँ हाँ, वो कैसे बुद्धि को खत्म करें, बाहर की बुद्धि को, अंदर अंदर का ज्ञान आए। और जो ओके सीधे साधे हैं उनके लिए भजन ही पर्याप्त है, ऐसा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट।